Slides are visible to you? Yes, please. And voice is audible. Let me know. Slides visible है सबको? Or voice? Then we need to start. Yes. हाँ मनदीप बोलो बेटा. मोहित, पायल, वॉइस क्लियरली आ रही है तुम लोग को? Yes, ma'am. Okay. Now we are starting and moving ahead with the VHDL program. See, in this particular one, these two lines are standard. Now you should be ready with your copy pen to write the particular programming pattern. Fine. So in this particular, I'm just explaining you AND gate. What is the AND gate purpose? If you reminder that this is a particular your AND gate symbol, two input used to be given and one output used to be there. And suppose A and B is my input. So here I will get the product of A and B. That is the AND gate purpose. The same is going to be performed here. And here we are using data flow modeling. There are three kinds of modeling. So much theory is used to be there. But due to lack of timing and we have two more unit which is very lengthy, we are not discussing that detailed description. But yes, of course, the major part we are surely used to complete. So जनरली प्रोग्रामिंग लिखने के तीन मेथड्स होते हैं VHDL में. वन इज डेटा फ्लो. तो अभी जो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम मैं बता रही हूँ वो डेटा फ्लो है. सो यू कैन राइट डाउन एंड गेट डिजाइनिंग यूजिंग डेटा फ्लो मॉडलिंग. अब हर प्रोग्राम में ये दो लाइन सेम रहेगी. लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE.std_logic_1164.all ये सब में ही रहेगी. एंड सेकेंडली then after this entity will be the your keyword. entity सब में आएगा. entity name could be changed. जैसे अभी अपन AND gate बना रहे हैं तो AND G अपन ने इसका नाम दे दिया. and one more thing you need to keep in a focus, logic gates are also available in library of VHDL. so हम AND और इस तरह के नाम भी entity या architecture को नहीं दे सकते. why it is so? because that will show error. इसीलिए अपन ने यहाँ AND G दिए. And it is my suggestion, give you the name of program user friendly. Suppose I am making AND gate circuitry, so I gave name AND G, so that wherever you save this file, it is going to be quite understandable that this is the program of AND gate. ठीक है बेटा. अब देखो एंटिटी एंड जी इज, तो इसमें ये सारा तो तुम्हें हर प्रोग्राम में लिखना है. एंटिटी एंड इज ऑल्सो कीवर्ड. दिस नेम कुड बी चेंज डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम. देन पोर्ट विल बी द keyword. port will be the keyword and इसमें हमारे जो इनपुट्स थे, जैसे अभी मैंने एंड गेट बनाया था तो ए बी जो है इनपुट है एंड सी विल बी माय आउटपुट. सो दिस इनपुट एंड आउटपुट could be vary depending on the circuit specification. Remaining and will be the keyword. C entity is port and is a keyword और बाकी ये input output ले लिए और and of G. Fine. Now आर्किटेक्चर एंड आर्क ऑफ एंड जी इज, इसमें भी ये तुम्हें ध्यान रखना है. आर्किटेक्चर इज अ कीवर्ड एंड आर्किटेक्चर इज अ आर्किटेक्चर नेम. दिस इज ऑल्सो चेंजेबल, मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम वी विल चेंज दिस. और एंड जी विल बी माई एंटिटी नेम जो भी यहाँ पर है. तो यहाँ इस लाइन का स्ट्रक्चर यही है, आर्किटेक्चर नेम ऑफ एंटिटी नेम इज. फिर हम बिगिन करेंगे एंड देन सी इज असाइन टू ए एंड बी. तो ये डेटा फ्लो मॉडलिंग में क्या होता है, हमने डायरेक्टली गेट्स को कॉल कर लिया है ए एंड बी. देन एंड ऑफ एंड जी, एंड इज अ कीवर्ड और ये सिंबल है. सो दैट इज ऑल अबाउट योर एंड गेट प्रोग्रामिंग. फिर इसका सिमुलेशन और ये कैसे होता है दैट आई विल टेल यू, बट वेरी फर्स्ट यू राइट डाउन दिस होल प्रोग्राम सो दैट इट इज गोइंग टू बी क्लियर यू.
जल्दी लिखो. Have you completed? Then I need to show you the waveform. Wrote the program. लिख लिया बेटा? लेट मी नो सो दैट विल मूव फर्दर. 5-6 लाइन ही है, राइट डाउन. इससे तुम्हें कंसेप्ट रहेगा. इसमें जो वेरिंग चीज है डिपेंडिंग ऑन सर्किटरी, वो ये इनपुट चेंज होते हैं और ये प्रोग्राम है. तो जनरली जो असाइनमेंट साइन है VHDL में वो लेस देन इक्वल टू रहता है. ठीक है, और इस तरह से एंड हमने लिया है तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. इट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, इनबिल्ट रहता है VHDL की. Xilinx टूल बॉक्स में भी और GHDL दोनों में से जो भी हम लें उसमें ये रहता है. See, let me know through the voice or either type the text so that I come to know that I should move ahead further. You written the program? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Now, after this, ये प्रोग्राम रन कराने के बाद particularly in a software run button used to be there and a schematic मतलब check. So if it is going to be successfully done, then इस तरह का अपने को schematic इसमें show होता है that A and B is there, AND gate and C is math. और फिर हम इसके सिमुलेशन वेवफॉर्म देखते हैं. सो दिस विल बी बेसिकली सिमुलेशन वेवफॉर्म जस्टिफाई वेदर आई डिजाइन माई सर्किट राइट और रॉन्ग, because syntax error just verify whatever program I have been written whether there is a symbolic error or not. But simulation completes your things that whether my circuit is running fine or not. Say it is an AND gate, so whenever until and unless both input is 1, output is going to be 0. So see, here it is 0 0 0 0 1 0 1 0 0. When both are input 1, it is output is 1. Hence it is justified. That is, these all are the screenshot to be taken by my students in the lab timing, and I put it here for the live. Otherwise, तुम्हें exam point of view में तो बस programming लिख दोगे, it's sufficient. But for your like concern and no exposure, I just put this waveform and this circuit. Fine. Next is a OR gate. OR gate को मैंने अब फर्स्ट प्रोग्रामिंग जो हमने करी है, आई विल ट्राई टू कंप्लीट 3 मॉडलिंग. ये जो थी ये किस मॉडलिंग के थ्रू थी? आई टोल्ड यू इट इज डेटा फ्लो, DFM मीन्स डेटा फ्लो मॉडलिंग इशू, जिसमें हम डायरेक्टली लॉजिक गेट्स को कॉल करते हैं. फाइन. नेक्स्ट प्रोग्रामिंग हम जो कर रहे हैं एंड गेट और गेट की, वो मैं तुम्हें किससे बता रही हूँ? बिहेवियरल से. मीन्स हियर डायरेक्टली डेटा फ्लो मीन्स हाउ सी फ्लो बाय द एंड ऑपरेशन ऑफ A and B. दैट इज अ पर्टिकुलर सर्किट. ठीक है. और जबकि सेकेंड सर्किट हम OR गेट का जो बनाएंगे उसमें प्रोसेसिंग चेंज है. OR गेट. नाउ हियर व्हाट वी डिड, ये दोनों लाइन मैंने तुम्हें सारे प्रोग्राम्स में कहा है कि सेम रहे. जैसे लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE.std_logic _1164.all. दिस थिंग विल बी एग्जैक्टली सेम इन ऑल प्रोग्रामिंग. अब हम यहाँ पर हमारा एंटिटी नेम चेंज हो गया C,
एंटिटी नेम इज चेंज इज. अब पोर्ट आप इस लाइन में भी लिख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो. तो एंटिटी और जी इज. बेटर यू नॉट गेट कंफ्यूज, आई जस्ट शिफ्ट इट हियर. ठीक है. सो एंटिटी और जी इज. ठीक है. एंटिटी और जी इज. पोर्ट में ए बी इनपुट ले लिया. एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक से nobody asked me, madam, what is this? So basically what happens, पर्टिकुलरली इसमें यह है कि जैसे अपन यूज करते हैं ना इंटीजर, बुलियन, बिट, इस तरह से. तो पर्टिकुलरली यहाँ पर एसटीडी अंडरस्कोर लॉजिक 9 वैल्यू को सपोर्ट करता है. 0 1 वीक 0, हाई 0, वीक 1, हाई 1, ऐसे. सो एंटिटी और जी इज पोर्ट ए बी इन एसटीडी लॉजिक और जेड ये. अब वापस एंड इज अ कीवर्ड एंड और जी मतलब एंटिटी नेम से एंड कर देते हैं. फिर आर्किटेक्चर, आर्क ऑफ, ये हमारा आर्किटेक्चर नेम हो गया और ये जो है हमारा एंटिटी नेम है और अंडरस्कोर जी इज. बिगिन किया. नाउ this is the particular programming which we are doing through behavioral modeling. Please write down the name. Depending on different programs, different methodology is there. ठीक है. बिहेवियरल मॉडलिंग से मीन्स और जी का फंक्शन मुझे क्या ध्यान है कि अगर मैं एक और गेट ऐसे बना रही हूं, so how it is going to be behave, it will be, जैसे सपोज ए है, ये बी है, and this is my z. So what is my z? Z will be assigned to a plus b. Is it the thing? Fine. So particularly what will be the behavior of OR gate? If any input is 1, my output is going to be 1. So 0 0 पे सिर्फ 0 रहेगा, बाकी सब में 1 रहेगा. तो हम इसके अब डायरेक्टली सर्किट को कॉल करने की बजाय हम क्या करेंगे, बिहेवियरल के थ्रू इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे. लाइक इन योर सी प्लस प्लस जैसे नहीं रहता था तुम्हारा इफ एल्स कंडीशन, सिमिलरली इन द VHDL ऑल्सो यू हैव पर्टिकुलरली आई मस्ट से इफ एल्स कंडीशन. ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर. अब इसके बाद जब भी हम बिहेवियरल प्रोग्रामिंग करते हैं, सो आफ्टर द आर्किटेक्चर बिगिन प्रोसेस लेते हैं. प्रोसेस इज ऑल्सो कीवर्ड. मतलब जब भी बिहेवियरल से प्रोग्रामिंग करोगे तो तुम्हें प्रोसेस लेना रहेगा. उसमें वो इनपुट एलिमेंट्स आते हैं जो प्रोसेस होंगे. तो हमारे इनपुट क्या है, ए और बी. So process A comma B. Then we started begin. If A is 0 and B is 0, then what will be the happen? My output Z is going to be 0. Else Z is assigned to 1. हम चाहें तो चारों कंडीशन लिख सकते थे, बट 2 लाइन में भी हमारा हो सकता है, क्योंकि what is the behavior of OR gate? When both input is 0, output is 0, otherwise output is 1. So that is the same thing which we did. अगर दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 है और एल्स में z is assigned to 1. एंड इफ, एंड प्रोसेस, एंड ऑफ, और दैट्स इट ऑफ दिस प्रोग्रामिंग. ठीक है. ये लिख लो तुम्हारा जिसका नहीं हुआ है तो. And inform me when you have completed.
डन मैम। ओके, नेक्स्ट ये लिख दो एल्स। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है हमेशा कि हर चीज का VHDL में एंड लगाना पड़ता है। जैसे इफ कंडीशन स्टार्ट करी तो एंड इफ, फिर प्रोसेस भी यहाँ पर था तो एंड ऑफ प्रोसेस, देन एंड ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, ये तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने। नाउ सेम इसमें भी यही होता है, जब अपन प्रोग्रामिंग रन हो जाती है और गेट की, उसके बाद अपन स्केमेटिक इसका पहले सिंटैक्स एरर चेक करते हैं, देन दिस विल बी द RTL schematic used to produce and this will be in the waveform. Now again we will check the simulation. See, when 0 0 is there, output is 0. When it is 0 and it is 1, output is 1. So 0 1 1 1 0 1 and 1 1 is 1. Hence my design or the circuit is perfect. ठीक है। Now comes NAND gate. NAND gate मैं तुम्हें बता रही हूँ स्ट्रक्चरल से, तो अपनी तीनों मॉडलिंग हो जाएगी। सी, फर्स्ट वन इज फर्स्ट प्रोग्राम जो था एंड गेट का, वो कैसे था, डेटा फ्लो मॉडलिंग से। सेकेंड अपन और गेट अपन ने बनाया, वो बिहेवियरल से था। थर्ड मॉडलिंग जो रहती है दैट इज नोन टू बी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जो हम अभी कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल मतलब कि सब कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। सपोज ये एंड गेट है, ये दिस इज माय NAND gate, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C, और यू कैन टेक X, Y और Z। इसको मुझे स्ट्रक्चरल से बनाना है तो कैसे बनेगा? इट इज नथिंग बट ये एंड गेट हो गया, और इसी में एक अगर मैं इन्वर्टर लगा दूं सपोज, एंड देन दिस इज C, और ये जो है A और B हो गया। ठीक है, my drawing is very poor, that is why I generally you prefer slides. ठीक है, अब इसमें क्या है, सिंपली अगर डेटा फ्लो से मैं बनाऊं तो कुछ भी नहीं है। जैसे अपन ने एंड गेट के लिए क्या है, C is assigned to what, A and B. So you can write down and do the programming. C is assigned to A and B. ठीक है, बट हियर वी आर डूइंग थ्रू स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। सो NAND गेट को हम स्प्लिट करेंगे इसके सब कंपोनेंट में। तो NAND गेट किससे बनता है, एक एंड गेट से बनता है और एक इन्वर्टर से। फाइन, तो अब इसमें हमें A, B और C तो है, बट एक यहाँ पर हमें सिग्नल लेना रहेगा, यहाँ पे जिसको हम S या X कुछ भी ले सकते हैं। ये सिग्नल क्या करेगा तुम्हारे, पर्टिकुलरली वट एवर विल बी द आउटपुट ऑफ A एंड B, उसको एज अ इनपुट एक्ट कराएगा इन्वर्टर में। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्किट इज क्लियर। फाइन, अब यहाँ पे ध्यान दो, लाइब्रेरी तो सेम रहेगी तुम्हारी। NAND जी में मैं XY इनपुट ले रही हूँ, Z विल बी माई आउटपुट। फाइन, उसके ये चीजें अब कॉमन हो जानी चाहिए। वैसे नेक्स्ट क्लास थोड़े प्रोग्राम्स तुम और खुद भी देखना, सो दैट थिंग्स विल बी मोर रिफाइन एंड क्लियर टू। ठीक है, बाकी ये जो लाइब्रेरी इंक्लूड करना है ये मैंडेटरी है। एंटिटी में अब देखो, एंटिटी नेम हमने सर्किट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, NAND G is। पोर्ट में इनपुट और आउटपुट ले लिया। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, ईच लाइन इज, जैसे इज वगैरह लगा है वो तो टर्मिनेट नहीं होगी, बाकी हर सेंटेंस टर्मिनेट सेमीकोलन से होता है। जैसे X, Y इन एसटीडी लॉजिक सेमीकोलन सेमीकोलन, सो दैट इज एंडिंग द स्टेटमेंट। आर्किटेक्चर हमने लिया,
अब इसमें हमें दो कंपोनेंट चाहिए, तो एंड जी और एक इन्व। तो हम ये मान रहे हैं इसकी जो एंटिटी नेम है, अब इसमें क्या करा जाता है कि उस पर जो उन कंपोनेंट्स को हम यूज कर रहे हैं, दोज कंपोनेंट यूज टू बी डिफाइन हियर, लाइक इन्व जी और एक इन्वर्टर ले रहे हैं, एक एंड जी ले रहे हैं। तो सी आर्किटेक्चर का बिगिन हमने स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट कंपोनेंट इन्व जी कर लिया, मतलब इन्वर्टर, देन पोर्ट ए एंड बी। इन्वर्टर में क्या होता है, दो ही इनपुट रहते हैं, सी दिस, इफ दिस इज माय इन्वर्टर, so what will be the case, this is x and this is y, and what will be my y, that will be not of x, that is going to be there, so two input is needed and component। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, कंपोनेंट इन्वजी, मतलब कंपोनेंट का नाम लिख के उसके जो पोर्ट एग्जैक्टली वहां यूज हुए हैं वो तुम्हें लिखने हैं, एंड देन एंड कंपोनेंट इज अ की। नाउ आई सजेस्ट यू टू राइट डाउन दिस मैच, देन विल प्रोसीड फर्दर। और आज बस अपन ये 3 प्रोग्राम ही करेंगे, इसमें तुम्हारी तीनों मॉडलिंग हो जाएगी। करो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। When you complete, please inform। वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुम्हें 2 मिनट और दे रही हूँ। Done, ma'am. ओके, आफ्टर इन्वर्टर नेक्स्ट सेकेंड कंपोनेंट एक और क्या था अपना, एंड गेट। एंड गेट में भी अपन वही पहले कंपोनेंट इज अ कीवर्ड, कंपोनेंट का नाम लिखेंगे और फिर ए बी और सी ये लिख देंगे, फिर एंड कंपोनेंट इज माय कीवर्ड सी, ईच लाइन इज टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन, फिर इसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। नाउ अभी तक वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन इंटरेस्ट, आर्किटेक्चर का अभी तक बिगिन स्टार्ट नहीं हुआ है, सो वट एवर सब कंपोनेंट यूज इन अ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग वो आर्किटेक्चर के बिगिन से पहले डिफाइन होंगे। सेकेंडली सिग्नल भी उसके बिगिन से पहले स्टार्ट होगा, लिखेंगे उसे। एक अभी जब मैंने सर्किट बना के बताया था तुम्हें, तो उसमें नहीं था एंड गेट है और इन्वर्टर है, तो इन एंड गेट का आउटपुट इन्वर्टर में किसके थ्रू जाएगा, एक वायर है, उसको अपन को नाम देना रहेगा। मैंने वहां एस दिया था, S1 एस एक्स कुछ भी तुम दे सकते हो, तो अपन ने S1 लिया। वाई इट इज सो, बिकॉज जो भी मेरा एंड गेट है, क्योंकि हमें अभी से मैप करना रहेगा, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एंड गेट में हमारे एक्चुअल एंड गेट के इनपुट मैप करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो एज अ सिग्नल एक्ट करेगा और एज एक्ट करेगा इनपुट टू द इन्वर्टर, और फिर हमें इन्वर्ट होके मिलेगा। सेम थिंग हमने यहाँ करा है।
सी सिग्नल ले लिया, फिर आर्किटेक्चर का बिगिन स्टार्ट किया. U1 U2 जो रहते हैं दैट इज यूज टू कॉल इंस्टेंस नेम. ठीक है, U1 U2 एंड ऑल. तो ये इंस्टेंस नेम है. सो इसमें पर्टिकुलरली क्या होगा, जैसे U1 है तो एंड ऑफ जी पोर्ट में पोर्ट मैपिंग हो रही है इसकी. अब इसका सिंटैक्स भी तुम्हें ध्यान रखना है. ये इंस्टेंस नेम तुम U1 I1 कुछ भी ले सकते हो, बट हाँ उसके बाद डबल कॉलन लगाना है. फिर एंटिटी नेम लिखते हैं हम. पहले कौन सा गेट आ रहा है इसमें, अगर तुम्हें ध्यान हो, अब वो अनोट हट गया है, ये सर्किट आ रहा है. तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, जैसे ये X एंड दिस इज माई Y, एंड इसका जो आउटपुट आ रहा है दिस इज द S1 सिग्नल. Then I am using one inverter here, and this is going to give us Z. यही चीज हमने करी. अब सी कंपोनेंट जो हमने कॉल किए वो उसमें जो भी इनपुट आउटपुट यूज हो रहे हैं दैट यू कैन एनालाइज, बट हियर फाइनल पोर्ट मैपिंग में जो हमने एंटिटी में इनपुट आउटपुट लिए दैट यू नीड टू मेंशन. सो एंड गेट पोर्ट मैप क्या लिया, X Y एंड S1. ये चीज ये कह रहा है this AND gate is now mapped with my XY and its output is going to S1. सेकेंड में क्या हो रहा है, इन्वजी मतलब इन्वर्टर का अपन ने एंटिटी नेम लिया है, यहाँ हम एंटिटी नेम ही लिखते हैं. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू बी क्लेवर इन टेकिंग एंटिटी नेम. सो इन्वजी पोर्ट मैप S1 Z. इसका जो भी आउटपुट है वो इन्वर्टर में जो आ रहा है और इन्वर्ट होके हमें Z मिल रहा है. और लास्ट में हमने एंड ऑफ आर्किटेक्चर करना. दैट्स इट फॉर दिस प्रोग्राम. ठीक है, लिख लो ये. कंप्लीट हो जाए तो बताना. फिर उसकी वेवफॉर्म देखते हैं अपन. इसके आगे अब अपन 17 को करेंगे. लिख लिया बेटा. दैट्स इट ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इज इम्पोर्टेंट. जनरली इसका एक दो क्वेश्चन तो मेरे को लाइक आई मस्ट से टंग पे आ चुके हैं. डिजाइन फुल एडर यूजिंग हाफ एडर थ्रू स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. सेकेंड वन, डिजाइन 16:1 multiplexer using 4:1 multiplexer. These are most genuinely asked question in the VHDL or a VLSI of higher marks, 10 to 15 marks. हो गया, आई थिंक हो गया होगा. कंप्लीटेड. 5 लाइन ही तो लिखनी है. ठीक है, अब इसको भी हम जब आरटीएल स्कीमेटिक इसका देखते हैं. आरटीएल का फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक. तो ये इस तरह का रहेगा 9 गेट का. ये हमारा एन गेट हो गया. और ये सिग्नल विजिबल नहीं होते हैं आरटीएल में,
बट यस ऑफकोर्स हमें प्रोग्रामिंग में सिग्नल्स लेने पड़ते हैं. यू कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो. और ये वेव फॉर्म. नैंड का केस क्या होगा? एंड से बिल्कुल उल्टा होगा. मीन्स इफ एनी इनपुट इज 1, when my both input is 1, output is going to be 0, otherwise it is 1. So see, when both are 0 0, it is 1 0 1 1 1 0. अब ये both is used to be 1, it is 0. When it is 1, it is 0. It is. ठीक है. So hence it is very fine. अब नेक्स्ट क्लास में वेब फॉर्म्स बनाना चाहो बना सकते हो. वैसे ये अंडरस्टूड है, तुम खुद भी बना लोगे. नॉर गेट से मैं लॉजिक गेट एक बार इसलिए सारे बताऊंगी, डिफरेंस तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा. जो भी चीजें चेंजेस वगैरह हैं, वैसे भी इसमें मैं ज्यादा नहीं, जो स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग ही रखी है और कुछ तुम्हें असाइनमेंट में मैक्सिमम दे दी है. ठीक है. सो आई एम जस्ट concluding our today's part that we started. मतलब फर्स्ट लेक्चर में तो अपन ने एफपीजे एसिक के डिफरेंस, वेरिएबल वेरिलॉग डिफरेंस, ये सब किया. टुडे वी स्टार्टेड विद डेटा फ्लो मॉडलिंग. एंड गेट हमने डेटा फ्लो मॉडलिंग से स्टार्ट किया. फिर और गेट हमने बिहेवियरल मॉडलिंग से स्टार्ट वी परफॉर्म. एंड देन लास्ट वन इज अ नैंड गेट. नैंड गेट वी परफॉर्म थ्रू स्ट्रक्चरल मॉडल. ठीक है. एंड वी कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्लास में हम एक दो और गेट्स करेंगे. जैसे नैंड मैंने स्ट्रक्चरल से किया, और गेट आई विल लेट यू नो थ्रू द बिहेवियरल. और फिर एक्सॉर गेट जो है वो हम बिहेवियरल से या डेटा फ्लो से जैसे भी रहेगा वो अपन करेंगे. इसमें ज्यादा नहीं, 2 गेट्स और अपन करेंगे. फिर फ्लिप फ्लॉप है. फ्लिप फ्लॉप भी मैंने एक ही लिया है, बाकी सब तुम्हें मैंने असाइनमेंट या इसमें दिए हैं. यू कैन आस्क मी एनी टाइम. फिर एक रजिस्टर और एक काउंटर. एज इट इज काउंटर्स बहुत सारे हैं. और ये भी मैंने कह रही कि नेचुरली ये भी कंफर्म नहीं है कि यही काउंटर भी यूज पूछा जाए, बट यस बाकी सब भी करने. एक मैं बता रही हूँ, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करो. इफ यू आर अनेबल टू डू देन यू कैन आस्क. Okay, now give attendance. Today we are ending with this, and tomorrow again by 11 o'clock our sustainable engineering class will be there. ठीक है. और next week तुम्हारी कोई क्लास नहीं है. Enjoy and do assignment. Fine. कृष्ण गोपाल ने मतलब मैंने वैसे नीरज को तो इन्फॉर्म कर दिया था. आई डोंट हैव योर नंबर्स, सो आई वाज अनेबल टू इन्फॉर्म यू. तुम्हारा जो कोर्स एग्जिट है वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो तुम मेरा मेल आईडी मैंने नीरज को भी दिया है, तो उस पे तुम कर लो. ठीक है. ओके. समझ आ रही है कृष्ण गोपाल? तुम्हें ध्यान है तुम कितने दिनों बाद आज क्लास अटेंड कर रहे हो? यस मैम. और ये सब अपना रिकॉर्ड एकेडमिक सेक्शन में जाता है. अभी जैसे यहाँ पार्टिसिपेंट 9 है, तो इसको आज कल 19 नहीं कर सकते हैं. सो अटेंड करो क्लासेस. अभी वैसे ही लैब सेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं है. प्रोजेक्ट तुम्हारा इस बार आरटीयू ने रखा ही नहीं है, नेक्स्ट सेम में है प्रोजेक्ट. सो एटलीस्ट क्लास 2 ही सब्जेक्ट हैं, दोनों 150 मार्क्स के. फाइन. लास्ट स्टेज में तो तुम 120 में से लोगे 30 मार्क्स, तो अपने कंफर्म करो बढ़ के और क्लासेस अटेंड करके. अभी मिड टर्म आने वाले हैं थोड़े दिनों में तुम्हारे, है ना. ये तुम्हें स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए. बट अब क्या है, तुम लोग नाउ ग्रोन अप. वी कैन नॉट अगेन एंड अगेन शाउट एंड टेल यू ना, बट क्लास अटेंड करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा. जैसे आज अभी तुम आए हो मीटिंग में, इससे पहले तीनों टाइप की प्रोग्रामिंग डिस्कस हो चुकी है. And this programming will help you in a lab also. Don't consider कि मैं लैब में दोबारा तुम्हें रिवाइज करूंगी. I just tell कि क्लास में अपन ने एक्सप्लेन करी थी, उस मेथड से करना है ना. चलो. Okay. और मेरे को मेल कर देना तुम्हारा कोर्स एग्जिट. यस मैम. चलो बाकी मनदीप, मोहित, Mandeep present, ma'am. प्रेजेंट मैम. पायल,
आयुष शर्मा सिद्धार्थ सिद्धार्थ भजन मैम वंदना ओके एनी डाउट यू हैव? देखो अब यहाँ से अपना इंटरेस्टिंग शिवांगी प्रेजेंट ओके मैम आंचल प्रेजेंट मैम शिवांगी प्रेजेंट ओके बेटा, अब यहाँ से अपना जो है प्रोग्रामिंग पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये थियोरेटिकल नहीं है. सो लेट यू एंजॉय दिस प्रोग्रामिंग पार्ट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ठीक है, डाउट पूछोगे तो मुझे लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो. फाइन, ओके. सी यू टुमारो फॉर द सस्टेनेबल इंजीनियरिंग क्लासेस. ठीक है, आगे की प्रोग्रामिंग अपन नेक्स्ट उसमें करेंगे. फाइन, ओके, हैव अ गुड डे.